10. Question number, now we But comes 10, to sir. the question number 8. I discussed on Friday. I told you I am discussing the value added tax and sale tax. Find the sale tax and value added tax fact. सबसे पहले आज हम इस पे बात करते हैं. Sale tax is included on the values. Now look at the page number 124, page number 124 and example number 8, finding sale tax. Look at your book. A cost of the pair of the roller skates at the shop was rupees 450. The sale tax charge was 5%. Find the bill amount. That means this amount, that means that this tax, sale tax is included in the cost price. Cost price में ही ये include हो जाता है क्योंकि जो शॉपकीपर है उसको गवर्नमेंट को ये चार्जेस देने पड़ते हैं तो वो अपने जेब से तो लगाएगा नहीं, वो सभी जो भी लोग पीपल्स होते हैं उसी के ऊपर अपने बिल में चार्ज लगा के ऐड करके दे देता है. Therefore you add this charges in the cost price में ही इसको ऐड करके दे दिया जाता है. First to find the question number 8. Now look at the question number 8. The price of the TV, that means the cost price of TV. Question 8. जो है तो काट चेक कर लेना रिया के. Question 8. Question 8. The cost price of TV, CP of a TV equal rupees 13,000. 13,000. Don't talk. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. That means the sale tax is 12%. 12%. The sale tax is 12%. Find the amount Vinod will be paid if he buy it. If he buy it, that means SP of the Vinod will pay amount. That means if we find the amount of the TV, so we very easily we find amount of the TV, amount of a TV. We add this sale tax in the cost price. That means we find CP, cost price of CP, cost price or a SP. In this question, the price of the TV, that means this price, this is the SP also. Yes sir. आप CP भी मान सकते हो, SP भी मान सकते हो, as you like. अगर शॉपकीपर के बारे में हम बात करेंगे तो उसकी ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और अगर ग्राहक जो भी व्यक्ति उसे लेगा तो वो उसकी एसपी हो जाएगी. तो इसमें अगर आप सोचोगे कि सर यहाँ एसपी क्यों नहीं लिखे, यहाँ सीपी ही क्यों लिखे, तो मैं शॉपकीपर से बात कर रहा हूँ, शॉपकीपर हो के बात कर रहा हूँ, तो मैं शॉपकीपर हूँ और तो मेरी ये कॉस्ट प्राइस है टीवी की जो मैं इसे सेल करूंगा. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी प्लस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस और ये मैंने कॉस्ट प्राइस के 12%. द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज को मैंने कॉमन ले लिया 13,000 एंड प्लस 12%. दैट मीन्स 12% ऑफ 13,000 upon 100 and this 20 cancel to each other and therefore 13,000 plus we multiply 12 zeros are 0 and 12 threes are 36, 12 threes are. इसके भी दो मेथड होते हैं, आप चाहोगे तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, किसी से भी मैसेज निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती. 12 0 0 12 3 36 का 6 कैरी 3 कैरी 3 12 1 12 और 3 15 and then rupees. You add this number, this 5
141. That means अच्छा सुनना पड़ता है the amount of the TV is 1400. कितना आंसर आ रहा है? 2 हैं? सही है सर, उतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना? तो that is our answer. यस सर, हाँ, इतना ही आ रहा है। okay, okay. Write down. Okay. Hello. यस सर। यस सर Okay. Now come to the GST. GST हेलो पे हेलो आते कहा हैं। तुम GST में भी सिंपल चीज वही सिमिलर चीज है। सर गुड सर्विस टैक्स। हाँ, गुड सर्विस टैक्स GST। यस सर। Can I erase this part? इसको मिटा दे, इसको इरेज कर दे। नो सर, 2 यस मिनट। सर। Okay. यस सर समझा का दवा सा नींद में सुता रहा है ओए कौन बोल रहा है भाई? आया नहीं साला कहां से कौन बोल रहा है डिस्टर्ब बहुत करते हो आप। डिस्टर्बिंग है। के सत्यम पटेल माइक अपना म्यूट कर दो Okay, यार। okay. Don't discuss. Now, GST, in GST, we are finding the values. So GST में देखिए example number 10. First we look the example number 10. Then we start the questions. Salim bought an article rupees 784, which included GST. That means it is included the GST rupees 12%. The GST is included in this price of an article. What is the price of an article before GST we added? So हमें before the GST, I don't know what is the article. So you finding this type of question with two assuming method. इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एज्यूम करके पता ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर्टिकल की तो वैल्यू मालूम नहीं है कि वो आर्टिकल कितने में था बिफोर GST। तो या तो X से मान लीजिए या 100 में। तो 100 वाला भी बहुत आसान है, वेरी इजी। Let's suppose the Yes, price sir, of an 100 original price of the article is बहुत rupees 100 and we added the GST, it comes 12%, then the article be 112. अब हमें जो चीज निकालना है बिफोर GST, we find the article and before the GST the article's price is 100 rupees और 100 पे आप निकाल देंगे, वैल्यू आ जाएगी। It is very easily we find. So now we come to the question number 10. Question number first we complete the question number. Can I 9th we completed or you have completed this question? 9th वाला करें कि आप लोग कर लोगे? मार्क प्राइस पर है। सर 9th कर लिए, 10th बताइए। 10th बताते हैं। 9th कर लिया हो ना? यस सर। 10th वाला है, a price of hair dryer is rupees 5,400 including 8% GST. 8% GST इसमें included है। तो sorry, 8% VAT included है। Find before VAT was added. That means you find before VAT what is the value of the article. तो इसमें आपको assume करने पड़ेगा। तो अभी जैसे 100 पे करा है, मैं 100 पे कर दूं कि X पे करूं? जिस पे तरह बताओ उस पे कर ले। हेलो सर 100 म्यूट कर दीजिए 100 पे कर दे। यस सर, 100 पे कर दीजिए। let the price of question number 10. Let the price of hair dryer equal to rupees 100 and VAT is included 8% VAT. VAT is 8%. This is my original value and VAT is equal to 8%.
therefore cost price of the hair dry ये भी लिख सकते हैं, या selling price of the hair dry, या hair dry price with VAT, जो भी आप चीज लगाना चाहते हैं स्टेटमेंट में आप लगा सकते हैं। price of hair dryer with VAT is equal to 100 plus 8. It comes rupees, and that comes rupees 108. 108 आ गई। This is my सर अरे क्या हो गया? वैट का फुल फॉर्म, वैल्यू एडेड टैक्स यार, वैट का फुल फॉर्म। वैल्यू एडेड टैक्स। ओके सर। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लीजिए, चाहे मत मानिए, कुछ भी आप चाहें। दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन, and now Sir, you आपको find sound it too clear है। before added VAT, before VAT, what is the value of the hair साउंड dry? टू क्या है? तो VAT लग के 8% था, 100 हमें ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, ओरिजिनल सर वैल्यू साउंड बतानी करूँ क्या है? है। सर 100 अपॉन में 108 कर देंगे। रुकिए, the purchase of hair dry included VAT करूँ before, क्या रहा है? find the price before VAT। तो before VAT price क्या थी हमारी 100। So those things you have find, you always put at the right hand side। तो रिक यहाँ लिखिए with VAT, with साउंड अप करूँ क्या है? VAT hair dryer, Including weight। hair dryer rupees 108, and before VAT, सर हाँ, VAT साउंड टू क्या है? hair dryer, hair dryer price is equal to rupees, हाँ, yes, 100, therefore 1 per rupees, हाँ, yes, बोलिए 108, and it is given before the VAT, the price is rupees 5,000, with VAT the price is 400। the price is rupees 5,000. What is the with VAT? 5,400. So now it is multiply 100 into 5,400 upon 108, and it is multiply here 108 ja 100 or 105 za 540, it comes 0, it comes rupees 5,000, and that is our answer। सर हाँ बोलिए आपको साउंड रुक क्या है? हैं? सर क्या? आपका साउंड रुक क्या है? सर आप थोड़ा साइड हो जाइए सर, बोलिए। लिखना है। अभी आ रहा है साउंड? यस सर ठीक है, ठीक है ना? म्यूट कर दीजिए सबको। म्यूट कर दें सबको? नो सर आने दीजिए, पूछने में दिक्कत नो होगा। सर मत करिए हाँ, तो इसलिए आप लोग शोर ना सर, मचाइए। बोल दीजिए सर, हाँ। सब कोई खुद ही से हाँ कर ले। अब ये लेट द प्राइस ऑफ द हेयर ड्राई इज रुपीज 100, वैट इज 8%। ज्यादा तो कुछ ना प्राइस ऑफ बोला। हेयर ड्राई, डोंट टॉक, लिसन बे, विथ वैट हो जाएगा 108। हमें बिफोर वैट प्राइस निकालिए, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 100 व्हेन प्राइस इज हेयर ड्राई प्राइस, वैट हेयर ड्राई प्राइस इज 100, बिफोर वैट द हेयर ड्राई प्राइस इज रुपीज 100। 1 पर निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5,400 पे मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। दैट इज वेरी यूनिटरी मेथड, नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैन आई इरेज इट? यस सर। यस सर। ओके, नो सर, नीचे वाला छोड़ दीजिए। अच्छा, करो। ये बोर्ड का दिख रहा है ना? यस सर। ओके, यस सर। क्योंकि सर मुझे हो पता गया। नहीं- हो गया ना? ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पे आ जाएं? क्वेश्चन नंबर 11। सर अब एक्सरसाइज सर 11th। Okay, question number 11.
An article purchase, सर इसको एक्स पे कर दीजिए. इसको x पे कर दें, चलिए. An article was purchased rupees. Yes, sir. Okay. GST, good service tax. It is also, GST is also added. So an article price, an article was purchased, not a price, purchased. That means अब परचेज किया है तो जो शॉपकीपर है वो तो उसकी एसपी हो गई, ये इस परचेज है. और जिसने खरीदा है या खरीदने वाले को समझ लीजिए उसकी एसपी होगी और शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस होगी. लेकिन शॉपकीपर की एसपी हुई और जिसने खरीदा है उसकी ये सीपी हो जाएगी. तो खैर, एन आर्टिकल वाज परचेज रुपीज 1239 इंक्लूडेड जीएसटी of 18%. इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है जीएसटी. तो फाइंड द प्राइस आर्टिकल बिफोर जीएसटी. तो आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी. तो फर्स्ट लेट एज्यूम, लेट बिफोर जीएसटी आर्टिकल प्राइस बी इक्वल रुपीज एक्स हो गया. अब 18% विद जीएसटी. अब आर्टिकल का विद जीएसटी आर्टिकल की प्राइस क्या हो जाएगी? तो विद जीएसटी आर्टिकल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज, इस एक्स में 12% प्लस 12% ऑफ एक्स ऐड कर देंगे. तो चलिए भाई, रुपीज एक्स प्लस 12x by 100, and if you solve this it comes 112x by 100, and this is my first equation. First equation भी नहीं, इसको भी रहने दिए. Look at here. Now with GST article price is given. According to question, the article price is, what is the article price? 1239. हैं? 1239 है. ओहो, तो मैंने यहाँ 12% लिख दिया. 18% है ना? 18% Yes, है. sir, तो इसको तो यहाँ से फिर गलती हो जाएगा. 18%. It comes 18%. यहाँ 18% कर लेना बच्चे. एक गलती से लिख गया है. ठीक है? And the GST, with GST the article price is rupees 1239. इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया. अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं. इससे रुपीज कट गया. Therefore x is equal to, by the cross multiplication, 1239 into 100 upon 118. और 118 को मल्टीप्लाई करिए. किस नंबर से करेंगे? डिविजिबल करिए. 8, 9, 10 किस नंबर से? तो ये वाला नंबर किसी से जा रहा है? ये वाला नंबर, ये देखिए. यस सर. कौन से नंबर से? 1239 से. 3 से ये नहीं जाएगा. 8 plus 1 9, 9 1 10. It is not divisible by 3. It is divisible by 2. 5 से. सर 118 और 1239 10.5 टाइम में कट जाएगा. डायरेक्ट ही कट रहा है. That means it is divisible. यस सर. वेरी कोई बात नहीं, हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं. 1239 divided by 118, it comes 1 times. तो 118, 13 में से 8 गया. 1 2 3 4 5. It comes 5 and it comes 0. It comes 0. तो this number अब यहाँ उतारेंगे. तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 0 से? It comes 0 9 5. Then decimal and put. How many times? How many times? 5 times. 5 times जाएगा. नहीं हाँ 5 times. 590. That means
10.5. I will write here 10.5 into 100. अब 100 है तो चाहोगे तो ये एक डेसिमल इससे काट दीजिए क्योंकि 10 आएगा और आ जाएगा 1050. This value put there. यहाँ put there. So before GST, article price is equal to rupees 1050, and that is our answer. बहुत आसान चीज है. Yes, sir. This is my rough work. Rough work also like a fair work. Rough work भी आपका fair जैसा ही होना चाहिए. तो and it is similar. कोई दिक्कत? Any problem? नो सर. Any doubt? No, sir. तो No, sir. सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. एक बार एक्सप्लेन. देखिए हमने x से भी निकाल सकते हैं. बच्चे ने बोला कि सर x से निकाले, 100 से भी निकाल सकते हैं, x से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले हमने जो निकालना है बिफोर जीएसटी निकालना था, तो हमें मालूम नहीं था बिफोर जीएसटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर्टिकल. तो फर्स्ट एज्यूम लेट बिफोर जीएसटी द आर्टिकल प्राइस बी x. अब उस पे 18% का जीएसटी लग रहा है तो उसका 18% हम निकाल के इसमें ऐड कर देंगे. तो विद जीएसटी उसके आर्टिकल की प्राइस आ गई. वही चीज हमने किया है, x प्लस 18% ऑफ x ऐड कर दिया और यहाँ बिफोर जीएसटी वैल्यू दे रखी है, हमने पुट कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, वैल्यू आ गई इजीली. दिस मेथड इज वेरी इजी. ये तो और भी आसान मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलें. इस एक्सरसाइज को कंप्लीटेड एंड आई होप ऑल ऑफ यू know about this exercise. And any doubts? No, sir. Doubts है? No, No, sir. sir. नहीं. No, sir. So come to the next topic is compound interest. Now my next topic is compound interest. आप चाहिए तो अदर बुक्स के आप करिए. ये एक सर्विस सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर. सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CI. CI से भी कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ open your books. First we start this chapter. तो हम इसके लिए कुछ फॉर्मूला बता दें. 141. इधर देखिए, आप लोगों ने in the class 7 you already know about the simple interest. Simple interest आपने पढ़ा है? Yes, sir. SI. Can you tell me about you find the simple interest? Can you find the simple interest? Which formula? Can you tell me? Yes, sir. P into R into 100. Principal into time into rate Into R into T. and if you find the amount, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस Simple interest. प्रिंसिपल प्लस Simple interest minus principal plus S. सिंपल इंटरेस्ट only we simply interest we find the simple interest. उसमें आपका ये इंटरेस्ट फिर ऐड नहीं होता अमाउंट में बार बार जा जाके. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बनने के बाद फिर इंटरेस्ट लग जाता है, कंपाउंडेड लग जाता है, करता है. टर्म्स ईयर का कंपाउंडेड होता है. जैसे आपने कोई लोन लिया और वो कंपाउंडेड है ईयरली, मतलब हर साल पे जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो ऐड होके और उस इंटरेस्ट पर भी फिर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड compound interest. That means this amount
comes as a principal amount. फिर जो अमाउंट हमारा 1 years के बाद जो इंटरेस्ट बन उसमें इंक्लूड होता है ये अमाउंट, फिर ये अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. दैट में इफ यू फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. अगर यहाँ कम लिख दिया है कि फाइंडिंग 2 years का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और रेट आपका ईयरली दिया गया है. रेट आपका जैसे लेट सपोज रेट इज इक्वल टू 5% ईयरली दे रखा है, मतलब हर साल उसका 5% लगता है. बट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years. तो फर्स्ट यू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर. पहले साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और अमाउंट निकालेंगे. एंड दिस अमाउंट कम्स अगेन एज अ प्रिंसिपल. दैट मीन्स दिस अमाउंट, ये प्रिंसिपल बन जाएगा. प्रिंसिपल इक्वल फर्स्ट ईयर अमाउंट. फर्स्ट ईयर अमाउंट जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा. ओके, दिस इज द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल. सेकेंड ईयर प्रिंसिपल. और फिर अगेन हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर वही फॉर्मूला P इंटू T इंटू R बाई 100 और फिर हमारा अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI. इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं. बट दिस मेथड इज ए लॉन्ग प्रोसेस. ये मेथड लॉन्ग प्रोसेस है. Yes, sir. इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला दे रखा है. डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं. फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट वी फाइंड अमाउंट हम निकाल सकते हैं. तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N. N का यूज कर सकते हैं. N इज द नंबर ऑफ ईयर्स टू द पावर N, या T भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. And then if you find the compound interest, then amount minus principal. इस प्रिंसिपल को हम घटा देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. तो एक क्वेश्चन हम बस इस तरीके से करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले बेस पे करेंगे. आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. टाइम भी हमारा कम ही है, 10 minutes भी लेफ्ट. नाउ कम्स टू योर एक्सरसाइज, comes to your book, page number 126. Now look at your book. And the bottom of the page, now example number 10. First I read the example number 10. A sum of rupees 10,000 is borrowed at the rate of the interest 15% per annum for 2 years. Rate है per annum for 2 years. एक साल का रेट लगता है 15%. Find the simple interest on the sum of the amount to be paid at the end of 2 years. So you finding the simple interest at the end of 2 years. So you apply the formula, first formula, simple interest equal to P into T into R by 100. इस फॉर्मूले को करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, नॉट यू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है. इस फॉर्मूले में रखेंगे सीधे. P प्रिंसिपल आपका 10,000 है, टाइम 2 years है, रेट व्हाट इज द रेट? रेट इज 15%. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000 रुपीज. और इस 3,000 को अमाउंट हमें निकाला, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. कहोगे तो अभी करके दिखा देते हैं इस फॉर्मूले पे. तो दिखा दीजिए. हाँ दिखा रहे, जस्ट अ मिनट. हाँ, नाउ वी फाइंड
at the end, find the simple interest. Find the simple interest at the end of the second year. At the end, so simple interest, we know simple interest is equal to P into T into R by 100. This is my 100. And now principal is rupees 10,000. 10,000 into time is 2 years and rate is 15%. 15%. And that comes, ये 0 से 0 cancel हो गया, ये 0 हो गया cancel, and 15 twos are 30, 30 into 100, and it comes rupees 3,000. देखिए 3,000 आ रहा है इसमें? Yes, sir. Addressing. And now we find the amount. Find the simple interest of this sum and the amount. Amount also you find. Yes, sir. So we know amount is equal to principal plus SI. Principal, my principal is 10,000. 10,000. And Minus 3,000. and my SI is, मैंने ये 3,000. एक मिनट बेटे, plus 3,000, and we add both the numbers. The how many? 13,000, 13,000. and that is our answer. Sir. This is very easy. तो ये तो Yes, बहुत sir. आसान है. Simple interest Yes, है. sir. आप लोगों ने जो previous class 7th में किए थे, similar question. But if you find the compound interest, अब देखिए आइए नीचे. Question number at the bottom of the page. A sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years. मिला सबको? Hello? Yes, sir. 2 years at Yes, the interest of 8% compounded annually. That means annually. This simple interest is added to the principal at the end of the first year, and this amount, it comes to the second year, starting second year, it comes as a principal amount. Principal बन जाएगा फिर ये amount. So now find the compound interest and the amount she has to pay at the end of the 2 years. At the end of 2 years. तो वो आपको amount भी बताना है, ना पे करना है, और compound interest भी बताना है कि उसको कितना मिला. तो पहले इसको हम इस मेथड से भी कर देंगे और फिर बाद में हम ये जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड है उसको अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि डायरेक्टली वेरी इजीली वी फाइंड दिस आंसर. तो इसको मैं इरेज कर दूं? Yes, Sir. इरेज कर रहा हूं इसको, दिस पार्ट. अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले एक बार इस सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में इससे मत करिएगा, डायरेक्टली यूज करिएगा और फिर मैं डायरेक्टली मेथड बताता चला जाऊंगा. हाउ मेनी मिनट्स वी लेफ्ट? कितने मिनट बचे हैं? हेलो हेलो, Yes, sir. कितने मिनट लेफ्ट हैं? Yes, sir. 4 मिनट. तो फिर क्या करूं, इसको स्टार्ट करूं? सर रहने दीजिए. नो सर. रहने दीजिए सर. No, sir. चलिए तो एक काम कल करिए, बता दीजिएगा. आपको होमवर्क देते हैं. होमवर्क थोड़ा सा आप ले लीजिए. अरे यार. क्वेश्चन एक्सरसाइज आप स्टार्ट करिए. ओपन योर बुक्स. बट इट इज गाइस दे दीजिए सर. आपको मुझे बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है? क्या? चलो ये करते हैं एक बार, जहां तक होगा होगा, बाकी तो हम कल सिखाएंगे. अब ये देखिए इसमें आपका अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है? P is equal to 20,000. टाइम कितना है? तो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, तो 1, 2 नहीं लिखेंगे, 1. एंड इंटरेस्ट इज, रेट इज 8% annually. So first we find the simple interest of the first year. So as P into T into R by 100, P is 20,000 अगली बार सर खरी बगल में. into 1 into 8 by 100.
and this 0 and this 0 cancel. 8 to the 16 and 2 zeros there. Rupees, it comes rupees, and this SI, the amount is equal to principal plus SI, and this principal is my 20,000 plus SI comes 1,600 and it comes rupees. Now we add 2 zeros, it comes 6, 1, 2, 1, 6. This is amount of the first year. But the second year, my principal amount comes this amount. ये हमारा second year के लिए ये principal बन जाएगा. So now, once again, now second year, the principal equal rupees 21,600. This is my principal. And now once again, my time is 1 year. 1 साल तो निकल चुका है, अब 1 साल अगला है 2 years के लिए, और रेट हमारा हो जाएगा 8%. तो हमारा फिर अगेन ऐसा ही हो जाएगा, SI is equal to P into T into R by P is rupees 21600 into 1 into 8 by 100. ये देखिए, and this 0 cancel to this 0, this 0 cancel to this 0. If you multiply 6 8 ja 48, 8 carry 4, 8 1 ja 8 or 4 12 carry 1 to a 16 170. This is my SI. 1720. This is SI. This is my SI. यही है मेरा SI है second year का. And finding the amount is equal to principal plus SI. My principal is, now we write here, my principal is 21 rupees 21600. My principal amount is this, and now you add this SI 1728. 17. And now my rupees comes 8, 23, 8 2, 7 to the 14, 13 का 3, carry 1, 1, 1, 2, 1, 3. 3. देखिए इतना आ रहा है आंसर. This is my principal amount. This is the amount at the end of the second year. देखो आंसर आ रहा है, देखो सेकंड ईयर में कितना है, नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है. Bye.